So this was something. Yeah. Let's start with illustration 6 now. Let me read it for you first. So it says Jai Kishan Limited had issued capital of this much, right? And इसमें एक चीज जो आपको notice करनी है सबसे पहले, the balance in the security premium is 1 lakh. It's given. General reserve is given 14 lakh. The company decided to buy back 20% of its share capital directly from its shareholder at 8 per share. Then the company has issued 5 lakh 10% preference shares 2 months back for the purpose of buyback. So please tell me, can I use these proceeds of fresh issue? Yes or no? Can I use the yes? Because what is the reason? Because it is a different Yes, because it is preference share and we are doing buyback of equity share, right? So let's first find out what is the amount of money that I am going to transfer to the buyback account, bank account. Anyone? Can you tell me how much money shall I transfer to the buyback bank account? I am waiting. बताओ जी. Ma'am, 16 lakhs. Correct. 16 lakhs. Yes, 20% and then वो कह रहे हैं 8 पर शेयर पे खरीदा है, ठीक है? So because 8 पर शेयर पे खरीदा है, so it becomes 16 lakh. What? मुझे उसके ज़्यादा कुछ और मिले. हाँ ठीक है, आप करो, मैं इसको वॉश कर लेना पहले. Okay, yeah. So this is done. Now the thing here is we have to make use of both, that is fresh issue also and we have to make use of free reserves also. Now if you remember, the condition is that if we are making use of free reserves and security premium, then that amount will be transferred to capital redemption reserve. Now I want you to tell me CRR का amount कितना होगा पहली बात. Yes, anyone, can you tell me how much will be the amount of CRR? Yes. Nominal value equal. हाँ देखो, अमाउंट निकाल के बताओ मुझे, चेक करो. You have to tell me the amount. Anyone who can tell me what is the amount of CRR? कहाँ से करेंगे CRR ये तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले मुझे चाहिए CRR का अमाउंट कितना होगा. हाँ जी. इसको मैंने सोप से धोया. अपने हाथ धो लो, सोप यहाँ पे लगा हुआ है. जाओ, ये देखो. Yes, all of you. Anyone? Amount of CRR. Ma'am, 15 lakhs. Ma'am, 15 lakhs. Right. Can you tell me how? Ma'am, general reserve 14 lakh and security premium 1 lakh. नहीं, ऐसे नहीं निकलता भाई. Hello. This Ma'am, is not. because हमने फ्री रिजर्व से 15 लाख का ही पे कर रहे हैं और 5 लाख का तो हमने फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से करा है. हाँ, ये देखो, आप पहले आप देखोगे क्योंकि फ्रेश इशू उसमें दिया हुआ है. देखो उसमें ये दिया हुआ है कि फ्रेश इशू दिया हुआ है और बैलेंस आपको ऑब्वियसली फ्री रिजर्व से करना है, ठीक है? तो वी नो फ्रेश इशू इज 5 लाख एंड हमारे 20 लाख 20% इज 20 लाख था. 20 लाख में से 5 लाख गया तो 15 लाख हो गया. नाउ द क्वेश्चन हियर इज anyone who can tell me that मैं डेबिट क्या करूंगी टू CRR? 15 लाख है, टू CRR कितना करूं? यहाँ पे डेबिट क्या करूं? Anyone? Charger. What account will be debited here? General reserve and security premium reserve account. Okay, fine. Let me write down. अभी please मेरी क्लास करने चले जाओ. यहाँ से जाओ, वहाँ रखो अपने रूम पे. So sorry about that. Yeah. So she's saying amount बोलो बेटा security premium का. Ma'am, security premium 1 lakh. Very good. And general reserve 14 lakh. Is it clear? Anyone who has a problem? Excuse me, ma'am. Yes, बेटा बोलो.
मैम रिजर्व्स में ही अगर अमाउंट कम पड़ जाते हैं सीआरआर वाले अमाउंट में फिर क्या होगा? ऐसा होगा नहीं, वो उसमें क्या होगा मैं बताती हूँ। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये होगा, हो सकता है बैलेंस शीट में आपको कम पड़ रहा हूँ, ठीक है, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये दिया हूँ कि आप कोई एसेट सेल ऑफ कर रहे हो। जब आप एसेट सेल ऑफ कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोई प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपका रिजर्व में चला जाएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, तो अब आपके पास उतना प्रॉफिट होगा कि आप बायबैक कर सको, क्योंकि बायबैक की कंडीशन ही है, नहीं तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके मैम। करेंगे वैसा क्वेश्चन भी करेंगे। मैम ऑल्सो मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम जो प्रेफरेंस शेयर इसमें इशू की है उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नहीं, वो राइट? उसने बोला ना 2 महीने पहले इशू किए, तो एंट्री तो वो कर चुका है। ओके मैम। ठीक है, ओके। नाउ so now I know the amount that is due, that is equity share capital, and this 20% हमें उसको पे करना है, and this I have to pay to the equity shareholder. एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली तो कैपिटल थी भाई 20 लाख की, लेकिन मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि 8 रुपए में खरीदा है 20 लाख, ठीक है, हाँ, तो हो गया मेरा 16 लाख, बट 4 लाख का मेरे पास आ गया डिफरेंस। सो ऑटोमेटिकली दिस 4 लाख इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ प्रॉफिट दैट आई हैव, एंड देयरफॉर इट गोज टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, एंड देन आई विल मेक द पेमेंट। इट विल नॉट बी टू बैंक, अगर आप टू बैंक कर दोगे तो भाई आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये याद रखना आप लोग। टू बाय बैक bank account, and this becomes 16. Any question, all of you? Please ask. Yeah, this is it. So this was illustration 5. सॉरी मैंने 5 ही करा दी गलती से, मुझे करानी नहीं थी, मैंने होमवर्क में दी थी वैसे। मैम हाँ बोलो। मैम ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना जनरल एंट्रीज में इन एग्जाम? नहीं नहीं, वो डिपेंड करेगा क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब सपोज तुम ऐसा करते हो, मैं बताती हूँ क्या ऑर्डर गड़बड़ होगा जो कि नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुमने सबसे पहले एंट्री कर दी इक्विटी शेयर होल्डर टू बायबैक बैंक अकाउंट, और उसके बाद कर रहे हो बायबैक बैंक अकाउंट टू बैंक, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? कैन दैट हैपन? यस मैम। है ना, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और फॉर एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, दूसरी चीज हो गई जैसे ये वाली कि भाई ये ड्यू अमाउंट है, तुमने पहले एंट्री कर दी इक्विटी शेयर होल्डर टू बाय बैंक बैंक अकाउंट, और उसके बाद ड्यू वाली एंट्री कर रहे हो ईएससी टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसा भी नहीं हो सकता। सो लॉजिक बेसिकली कि भाई स्टेप बाय स्टेप ये तो रहेगा ही कि ये चीजें नहीं होंगी, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ना हो कि सारी Yes, पेमेंट ma'am. हो गई और उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हो एसपीआर जीआर टू सीआरआर। गेट इट? Yes, Is ma'am. it clear? ठीक, okay. So fine. Now let's do illustration 6 करते हैं। So it's a little bigger question. ये 5 था actually और मैं 6 करने बैठ गई। It was 5. अब करते हैं 6. All right, please read all of you, and then I'll start asking you the question. Read. 5 minutes है आपके पास, then I'll ask you. तेरे पास है तेरे रूम में? When you're done, please let me know. जो मेरे अलमारी के ऊपर है ना
20,000. हाँ लेकिन धोने को डाल दोगे. Yes, okay. Can we start? इतनी देर तो नहीं लगती. शुरू करें? Okay. So let's see in this question. In this question, first again, I want to see how much money will I transfer to the buyback bank account. चलिए. So yes, there is it is saying हमें balance sheet में दिया हुआ है equity share 20, each 15 paid up. Aha. So this is very interesting. इसकी जगह we'll do something else पहले. What is the first entry that we'll pass? Book देखोगे तो गलत कर सकते हो. What is the first entry that we'll pass? And we'll make the Share shares fully final paid. call. Yes, that's correct. So we will do the entry of final call. Who is telling me the entry of final call, please? Share final call entry, please. Account debit to share capital. Your final call account debit to equity share, ma'am, 5 rupees. तो अभी मैं इक्विटी नहीं लिखा है वो मतलब आप देख लेना. ठीक है. So this is how much? This is 2,50,000. After this, second entry. बोलो. Second entry of final call, please. Bank account debit Yes. to share final. Yes. Final call. And to share final call. 2,00,000. Yeah. Okay. Now we've done this. Now I know that I have to transfer the money, and you can even check. You have, yeah, right. Okay. One more thing. Can you tell me how much money am I supposed to send in the buyback bank account? Anyone? कितना पैसा डालना है? देखो बताओ. Ma'am, 2,20,000. In the book उसने ये एंट्री पहले की हुई है. क्या वो ऐसा कर सकता है? Can he do it? नो मैम. नहीं. Why not? Give me the reason. क्योंकि पहले फुली पेड बनाना पड़ेगा ना, उससे बिना फुली पेड बनाए हम तो सही. दो रीजंस है. हाँ बिल्कुल 2 रीजंस है. एक तो ये फुल्ली पेड के बिना हो ही नहीं सकता ये चीज. ठीक है. प्लस प्रीमियम वाला पॉइंट भी है. वो भी है. एक और मेन चीज जो है बैलेंस शीट देखो ऑल ऑफ यू. कैश एट बैंक कितना है आपके पास? हाउ मच कैश एट बैंक डू यू हैव? देखो 1 लाख मैम. 1,50,000. उसमें हो जाएगा बायबैक? No, ma'am. So No. you need money, and for that also you have done this also. I mean obviously condition तो है कि उसे full करना है. या तो वो ये करता अगर fully paid होता suppose और आपके पास बैलेंस शीट में 1.5 लाख होता, तब भी गलती हो जाती है. आपको बैलेंस शीट में कैश को देखना बहुत जरूरी है. All of you, let me tell you that. Okay, make sure that you see how much money is available. हो सकता है कोई एसेट वो बेचता तो उसकी एंट्री पहले करनी पड़ती. बायबैक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर बाद में होता. Is it clear? Is it clear? ठीक है. यस मैम. अब मेरे को ये पता है he is saying that what we are doing is we are even selling an investment, right? So let's sell, and he is also saying that we are also issuing shares. Preference shares are being issued. Now see, somebody asked, I don't know it was Karthik या कौन, कि भाई हमने प्रेफरेंस शेयर की एंट्री नहीं की. वहां इसलिए नहीं की क्योंकि वो 2 महीने पहले हो गया था. यहाँ हम करेंगे because it is saying the company complied with all the requirements of Companies Act to buy back the equity shares. The company issued 1 lakh preference shares and the issue was fully subscribed. Karthik, is it clear? Yes, ma'am. So we do the entry bank to preference share application and allotment. Please tell me the amount, all of you. Yeah. 1 lakh. 1 lakh. It is given. So 1 lakh.
ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा मैंने वो पहले सॉरी। Aru, please go to your room. ठीक है, दिस इज डन। अब एक चीज और भी की है, वो कहता है उसने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है। सो इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड कर रहा है 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे। सो वी लुक्ड एट द बैलेंस शीट, 1,50,000 इज द इन्वेस्टमेंट। सो यस, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? एनीवन? Bank account debits P&L to investment. अमाउंट बोलो, अमाउंट बेटा। 1,20,000 bank ma'am, 30,000 P&L. अमाउंट। अब यहाँ पे आप देख लो, एक बार आप बैलेंस शीट देखोगे, पीएनएल नहीं लिखोगे। आई थिंक मीनाक्षी आपने पीएनएल बोला। बैलेंस शीट में वर्ड क्या यूज हुआ है? सरप्लस। तो यहाँ भी आप सेम नाम यूज करोगे, सरप्लस। इज इट क्लियर मीनाक्षी? Yes ma'am. सेम वर्ड यूज करना है। सो 1,50,000, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब मेरा प्रेफरेंस शेयर भी इशू हो गया, इन्वेस्टमेंट भी बिक गया। अब फाइनली मुझे करना है ट्रांसफर सीआरआर में, एंड देन ऑब्वियसली ड्यू की एंट्री भी करनी है मुझे, दोनों चीजें करनी है। सो लेट्स से आई एम ट्रांसफरिंग अमाउंट टू सीआरआर, एंड ड्यू की एंट्री भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम का भी देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से कुछ निकल रहा है या नहीं, ठीक है। सो वी हैव दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम to equity share holder. Yes. So how much will come in equity share capital? Anyone? The amount in equity share capital? 2 lakh 2 lakh. And premium? 20,000. Good. And then I have 2,20,000. ठीक है. Now I need to see that CRR में कितना है। मैं टोटल अगर यहाँ ऊपर जाती हूँ तो मुझे 2,20,000 पे करना है, ठीक है। 20,000 का तो उसमें से प्रीमियम ही है, जिसमें से कि 1 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो 1 लाख बच गया। अब मुझे 1 लाख CRR में ट्रांसफर करना है। नाउ इज द क्वेश्चन, जो मेरे को ये 1 लाख ट्रांसफर करना है, सब लोग बैलेंस शीट पे आ जाइए। या टेल मी, कहाँ से करूं? एनीवन? How do I transfer? From where do I transfer this 1 lakh to CRR? बोलो जी। Anyone? मैं from profit and loss and general reserve. ये आंसर देख रहे हो क्या आशुतोष? हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी कर सकते हैं ना, 30,000 तो बचा है उसमें भी। पहले यस, तो पहले इसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हो कि पहले तो एसपीआर से आप प्रीमियम राइट ऑफ कर दो, फिर देख लो कितना बचा। टू प्रीमियम है आपका 20,000 का। तो मैं बैलेंस शीट देखूं, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 का है, तो 30,000 में एसपीआर से ले सकती हूँ। 30,000 I can take from SPR. I have to have 70,000 now. So I think मेरे पास सरप्लस है 125 and I have general reserve also of 45. कहाँ और किसी और भी रिजर्व में तो हम भी सकते हैं। सब बोलो आशुतोष। मैं कह रहा हूँ ये मैटर ही नहीं करता कि हम कहाँ से उठा रहे हैं, जब तक हमारे पास बैलेंस है किसी एक ऐसे रिजर्व में जो तो हम अल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं। नहीं, I'll explain. मैं क्या बता रही हूँ, मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। देखा जाए तो टेक्निकली ये गलत है जो एंट्री बुक में दी गई है। क्यों? क्योंकि अब जैसे कार्तिक ने बोला, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे ये जो एंट्री की मैंने लेना चाहिए ना, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मतलब प्रेफरेंस शुड बी गिवन आइडियली टू एसपीआर ओनली, बिकॉज एसपीआर हैज ओनली लिमिटेड फंक्शंस। So those limited functions in our question are that is premium आपने इसका बायबैक का राइट ऑफ किया, और दूसरा था आपका सीआरआर को ट्रांसफर बायबैक के लिए। So सबसे पहले मैंने एसपीआर को एग्जॉस्ट किया। एसपीआर को एग्जॉस्ट करने के बाद जो मेरे फ्री रिजर्व्स हैं, which can be general reserve और surplus, क्वेश्चन में मुझे दिख रहे हैं, बाकी तो मेरे फ्री रिजर्व्स है नहीं। कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, so I can use that. But अब मुझे
यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, वो ये कि भाई बैलेंस शीट में 1,25,000 दिखाया था सरप्लस, और ये जो 30,000 ये क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है? एनीवन? प्रॉफिट लॉस। लॉस है। लॉस। तो आपको ये करने से पहले ना एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी, 1,25,000 में से तो लॉस ही हो गया 30,000 का, बचा कितना? 95,000। चलो जी ठीक है, 95,000 बचा तो मैं 70,000 डाल सकती हूँ। अगर सोचो ऐसी कोई कंडीशन हो गई होती कि मेरे पास बचता सिर्फ 60,000, तो मैं यहाँ नहीं डाल सकती थी 70,000, मैं 60,000 डालती और 10,000 जनरल रिजर्व से उठाती। इज इट क्लियर? तो मतलब पॉइंट क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, so what is the point? The point is that whenever you are selling off an asset, please keep in mind आपका सरप्लस का बैलेंस हिलेगा। वो कम हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है। ज्यादा होगा तो कोई इशू नहीं है, but then if it is decreasing, then you will have to see how much is available for you to transfer to CRR. Is it clear? Is it clear? Or is there a doubt? Please ask if there is a doubt. So we can, yeah. कोई क्वेश्चन है? आगे चलें? ठीक है, सो इसमें आई थिंक इन्होंने शायद बैलेंस शीट भी मांगी है, या यू कैन प्रिपेयर द पोस्ट बायबैक बैलेंस शीट ऑल ऑफ यू, दैट विल बी योर होमवर्क, एंड देन इलस्ट्रेशन 7 विल बी योर होमवर्क। ओके, नाउ लेट्स डू, अब आप करेंगे, वी विल डू इलस्ट्रेशन 9. You will do this illustration 9. I'll wait. Yeah, please start reading, all of you, illustration 9. I'll ask you a few questions. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो। Ma'am, whenever question asks for the balance sheet, हमें हमेशा notes to accounts भी बनाने हैं without बिल्कुल any mention. बिल्कुल, उसके मार्क्स हैं। Okay, सभी No chapters doubt. में. Yes, no doubt about that. That's a must. Okay. Okay. Now, please read. Then I'll ask you a few questions, and then we'll do the question. Just let me know when you're ready, when I can ask you questions. Raise your hands if you're ready. Illustration 9. This is a very similar question to what we have done. In fact, easier than that, because it does not have any issue of share that you're using. You're actually only using free reserves in this question, illustration 9. Okay, so you can have a question whereby you might have only free reserves to be used. You can have a question where you can have free reserves plus issue of shares to be used, and you can have a question where you have free reserves also, issue of share also, and a sale of asset also. Okay, all right, let's begin. So I would like to know from this question now, all of you, is that right? How much will be the amount that will be transferred to the buyback bank account? मैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद क्वेश्चन करोगे आप ही, आंसर आप भेजोगे, ठीक है? How much is the amount that will be transferred to buyback bank account? 5,50,000. Correct, that's right.
Let's go on now. Tell me what will be the entry. So आपका actually simultaneously आधा question हो भी रहा है, ठीक है? Now tell me what will be the entry of your selling of a machinery. So sale of machinery की entry चाहिए मुझे. अब on the entry of sale of machinery. What is the entry for sale of machinery? Anyone? Ma'am, bank debit, surplus debit to machine account. Amount बोलते जाओ बेटा. Ma'am, bank 1,30,000 and plant and machinery 1,30,000. Right. So who will tell me, is this a case of profit or loss? Yes, Ma'am, Loss. Loss. Okay, great. Last question, and then you can start doing the question. That, just be very careful when I'm asking you this, that for the transfer of CRR, what are the accounts that you will use? पहले अपनी calculation कर लेना, उसके बाद जवाब देना. For the transfer of CRR, what are the accounts that you will use? बताओ जी. Accounts that you will use for the transfer of CRR. I repeat, the question is for the transfer of CRR, what are the accounts that you will use? क्या हो रहा है? कैलकुलेशन हो रही है? What are the accounts to be used for the transfer of CRR? Anyone? SPR ma'am 150. Okay, very good. SPR is 150. What else? उसके अलावा बच्चे? ma'am, general reserve. जनरल रिजर्व ले सकते हो या फिर आपकी चॉइस है, आप सरप्लस भी ले सकते हो. लेकिन अब बेटा, अब अगर आपने बोला जनरल रिजर्व, तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री पूरी हो जाएगी? No, ma'am, surplus. तो फिर तीनों चीजें लेनी पड़ेंगी. So it's better, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ता. Let me tell you, फर्क कुछ नहीं पड़ता. But the point is, it's better अगर आपने SPR से मुझे पहले बताओ कितना लिया. How much did you take from 1 lakh. SPR? 1,50,000, right, मीनाक्षी? So बच गया 3,50,000. 3,50,000 कहाँ से लिया? मैं जनरल रिजर्व से तो ले नहीं सकती. या तो मुझे जनरल रिजर्व से 3 लाख लेना पड़ेगा और 50,000 मुझे सरप्लस से लेना पड़ेगा. अदरवाइज मैं सरप्लस से 3,50,000 लूंगी. लेकिन प्लीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 3,50,000 है कि नहीं है. 4 लाख है, 4 लाख में से लॉस है 30,000. 3,70,000 अवेलेबल है. सो यू कैन टेक 3,50,000. Cool. Please do it and send the solution in the chat box. I'm waiting. You have 5 minutes, all of you. Please do it.
Yes, I'm waiting for your solutions, all of you, in the chat box, please. हाँ जी, आधे से ज्यादा एंट्रीज तो डिस्कस हो गई, क्या हो गया? भेजो सोल्यूशन। Come on, all of you. Taking a lot of time for such a small question. Akansha, are you done? Anubhav? Ashish? Ashutosh? Bhavna? Chavi? Okay, someone has sent, I think. Yeah, so as expected, it is Bhavna. Good, Bhavna, but let me see your solution first. So we have, okay, bank surplus to machine, that's fine. You sold out the machinery. And then buyback to bank, that is 5,50,000. Okay, just a minute. Let me just see one thing. Yeah, so, see now, Bhavna, like I said, आपने ये जो एंट्री करी बायबैक बैंक टू बैंक अकाउंट 5,50,000 की, भावना कहाँ से करी? हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास 4,70,000 है, करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो 1 लाख पहले आया, उसके बाद भावना ने ये एंट्री करी, तो सबसे पहली एंट्री बायबैक टू बैंक नहीं होगी। ओके, दिस इज टू क्लैरिफाई, फाइन। देन वी हैव एसपीआर, दैट इज 1 लाख, कितना लिखा? 50, ठीक है। सरप्लस है आपका इतना 350 एंड देन यस, ओके 550 एंड एसपीआर टू प्रीमियम, ऑल राइट। पेमेंट की एंट्री नहीं की भावना, या वो नेक्स्ट पेज पे? हाँ, ठीक है। ओके, ग्रेट, फाइन भावना, थैंक यू सो मच। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ऑल ऑफ यू, and this will actually wind up the buyback chapter also, and that's illustration 10. Let's see, some of it you will do, some of it I will do. Let me ask you, so पहले तो read करिए, illustration 10 को पढ़ लीजिए everyone. Please read illustration 10. Mama, we have potato. Illustration 10 we are doing. Now listen to this very carefully. It says on April 2020, the company announced the buyback of 25% of its equity share at 15 per share.
For this purpose, it sold all of its investments, 1 lakh, 150 lakh, and issued 2 lakh 14% preference shares of 100 each at par. The amount being payable with application. Let's see the cash. I already have 740 as cash. But now then I will have to check 2400 ka 25% kitna hoga, and then equity share 15. So actually, how much money do I need? Anyone? How much money do I need for buyback? अगेन बुक में ये बिल्कुल गलत किया हुआ है, बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पहले एंट्री नहीं होगी, ये प्लीज ध्यान रख लो, मैंने पॉइंट आउट कर दिया, बुक में मार्क कर लेना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 740 है और एक्चुअली आपको अमाउंट कितना चाहिए? हाउ मच डू यू नीड? देखो कैलकुलेट करो, हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर बाय बैक? Yes. I'm 700 lakh. नहीं 700 कहाँ से हो गया? 2400 है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पैसा देखना है ना मुझे, टोटल कितना चाहिए, सो लेट मी डू इट। 600 तो उसका होगा। एक मिनट अभी बता रही हूँ, कैलकुलेशन कर रही हूँ। 24% ये रहा, और एक्चुअली एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और एक्चुअली आप कितने पे कर रहे हो? 15। 900 होगा ना? यू विल नीड 900। हाउ डिड यू डू द कैलकुलेशन? बताओ जरा, मैं बताती हूँ कहाँ गलती की है। Who said 700? Can you explain बेटा, ताकि मैं आपको बता सकूं। मैम प्रेफरेंस शेयर का भी आ रहा है, इसलिए मैंने बोला माइनस करके 200। नहीं नहीं यार, वो बात नहीं है, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट मेरा ये है कि मुझे पैसा कितना चाहिए बायबैक बैंक अकाउंट में, दैट्स माय क्वेश्चन। कार्तिक, कैन यू टेल मी हाउ मच डू यू नीड? मैम बट प्रेफरेंस शेयर भी इसने इशू किया है, तो वो वाला अमाउंट लेस नहीं होगा उसमें से? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई एम सेइंग कि मैं एंट्री क्या करूंगी, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बुक को अगर आप देखो, पहली एंट्री उसने क्या की? बायबैक बैंक टू बैंक अकाउंट की ना। क्या वो कर सकता है ये एंट्री? ये पूछ रही हूँ। कैन ही डू? वो तो पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उसके लिए मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ा? मैंने सिर्फ आपसे टोटल अमाउंट पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कहां से आया। I am asking you how much money total do you need to transfer to buyback bank account? Tell me that. टोटल तो 900 होगा। 900, ठीक है। तो अब 900 मुझे चाहिए, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में सिर्फ 740 दिखा रहा है, तो अभी मुझे और पैसा चाहिए। तो या तो लेट्स से उसने बोला दो चीजें करता है, एक तो वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करता है, तो मैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री करती हूँ। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या है? हाँ इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक, और मुझे पता है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखा रहा है कितने की? 148 की। सेल कितने की है? 150 की। वो कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है। तो मतलब दिस इज एक्चुअली अ प्रॉफिट का मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे पता है 150 आ गया, 740 मेरे पास ऑलरेडी था, 740 मेरे पास था, 150 मेरे पास ही आ गया। अभी भी मेरे पास 890 ही है, मैं अभी भी एंट्री नहीं कर सकती बायबैक बैंक टू बैंक अकाउंट, राइट? बिकॉज आई नीड 900। सो मैं करती हूँ इशू की एंट्री। नाउ इशू कह रहा है वो 2 लाख का इशू किया आपने सिंपल, तो आप प्रेफरेंस शेयर की इशू की एंट्री कर लो, दैट इज बैंक so divided by 100. ठीक है, अब मैं कर सकती हूँ एंट्री ट्रांसफर वाली। सो आपको ये देखना है कि बायबैक बैंक वाली एंट्री मैं कब करूंगी। ओके, बायबैक टू बैंक अकाउंट, दैट इज 9। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट्स सी। अब उसने बोला कि भाई प्रेफरेंस शेयर मेरा 200 है और मेरे को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स सीआरआर में। इसके अलावा कुछ नया तो नहीं है इसमें? नहीं, कुछ नहीं है, मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर से मेरे पास 200 आया है, एंड देन आई थिंक दिस इज द अमाउंट। एनीथिंग एल्स वी हैव?
No. Okay. So tell me, how much do I transfer to the आपका CRR? इसके लिए अगेन आपको ये देखना पड़ेगा ये एंट्री करने से पहले कि जो भी प्रीमियम था, ड्यू अमाउंट भी डाल सकते हो. ड्यू अमाउंट है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर, that is 900 and out of I think 300 का प्रीमियम आ रहा है आपको 600. This 300 premium I can take from SPR. Where is SPR? Yeah, 350 you have as SPR I think. Yeah. So SPR is 300 to premium. प्लीज अब ध्यान रखना पेपर में प्रीमियम पूरा लिखना है, ठीक है, प्रीमियम ऑन बायबैक करके. अब बताओ जी मुझे CRR मुझे ट्रांसफर करना है, कहां से कितना कितना करूं? यस, आई नीड द एंट्री ऑफ CRR. एनीवन हु कैन गिव मी द एंट्री फॉर CRR? बताइए. दिस आई वांट टू नो. I want the entry for CRR, please. All of you, take your time and tell me. I'm waiting for you to reply. पता चल जाएगा इससे आपको समझ आया कि नहीं. हाँ जी, CRR की एंट्री क्या हुआ? Everyone? How much, if you don't know, how much do you have to transfer to CRR? Amount कितना है जो CRR में ट्रांसफर होगा आशुतोष? Karthik, how much amount will you transfer to CRR? Lokesh, you want to say? You are कंफ्यूजन हो रहा था. कोई बात नहीं. लोकेश, you want to say CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? आवाज नहीं आ रही है आपकी लोकेश, आप अनम्यूट पे तो हो बट आई कैन नॉट हियर यू. चैट बॉक्स में लिख दो लोकेश. भावना, कितना ट्रांसफर करोगे CRR में? कितना? 400. यस, 400. कहां से करोगे? मैम SPR 50 एंड जनरल तरफ से. Perfect. Great. Very good, Bhavna. 350. Any doubt? Please ask. Because there is one more point here. ठीक है. So if there is no doubt, let me come to the last part of the question. The company achieved the target of buyback. Later, the company issued one fully paid up equity share of 10 by way of bonus shares for every 4 equity share held by the equity shares. We have already discussed this capital redemption reserve can be used for issue of bonus shares. Now, पहले let's see. इसके बाद एक्चुअली वी कैन डू बोनस इशू वाला चैप्टर ओनली सो दैट दे आर कनेक्टेड एंड छोटा भी है वो, ठीक है. तो अब मुझे करना है बोनस इशू. कहां से करते हैं बोनस इशू? हमने बोला CRR से करते हैं. CRR ये रहा टू बोनस इशू. अब आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द बोनस इशू. राइट, लेट्स सी. पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या कहता है? कहता है कि भाई अब आप मुझे ये बताओ बच्चे कि मैं बोनस इशू कितना करूंगी. पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए हाउ मच बोनस इशू विल आई डू. एनीवन कैन यू टेल मी? देखो और बताओ. 624. I'll also calculate and tell you. Yes, the bonus issue will be 450. Why? देखो 2400 थे जिसमें से कि बायबैक हो गए 600. So this means बचे कितने? 1800 divided by 4. हाँ, yes, very good. Minus 600. तो आ गया मेरा 450. अब प्रॉब्लम आई जी यहाँ पे. क्या प्रॉब्लम आई? मुझे करना है बोनस इशू CRR से करना है. क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो मेरा सिर्फ 400 का है. देख रहे हो?
have only CRR of 400. बोनस इशू मुझे करना है 450 का. अब कहां से करूं 450 का बोनस इशू? Anybody? From where can I do the bonus issue? बताओ, CRR के अलावा बोनस इशू और कहां से होता है? If you remember, हाँ बोलो फिर से बोलो. मैम सरप्लस से नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ एक्चुअली. ठीक है, सरप्लस से हो सकता है कि नहीं हो सकता, इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन हियर इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के क्या क्या यूजेस थे? विल यू टेल मी? उसके तो कोई पांच यूज थे मैम शायद. 5 एग्जैक्टली. अब वही एप्लीकेशन जो आप आई थिंक 11th या 12th में ये थियरी रटते थे, उसी की ये एप्लीकेशन है. अब आपको ये पता चल गया कि एक यूज तो आपने खुद ही देखा, प्रीमियम ऑफ बायबैक आपने राइट ऑफ करने में यूज कर लिया. ठीक है, दूसरा यूज क्या है आपका? दूसरा आपने एक और देखा कि आपको क्या कहते हैं CRR में ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर लिया. क्या इसके अलावा you don't remember, but आप लोग ये कर चुके हो. अगेन बोनस इशू के लिए भी आप यूज करते हो SPR को. सो नाउ देखो गेम पलट गया. कैसे पलट गया जी? भाई अब तो बोनस इशू के लिए मुझे SPR यूज करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ SPR. तो मेरे पास CRR तो सिर्फ 400 का है, 50 मैंने ये लिया और ये हो गया बोनस इशू. लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई भाई? यहाँ तो मैंने SPR ले लिया था 50 का, तो मैं इसको यहां से हटा दूंगी और सीधा जनरल रिजर्व से ही 400 ले लूंगी. That's it. That's it. Any question? Please ask. Any question, all of you? Do you have a doubt? अब जो भी डाउट होंगे actually regarding this bonus issue and all, so that's why logically I think we should now, the second chapter that we will do will be bonus issue, and tomorrow I'll be going to college, so we will not have the class. We'll meet on Friday, and on Friday we'll start with bonus issue. Till then, please make sure you've done all the practice for buyback. ठीक है? हाँ कार्तिक बोलो बेटा. मैम CRR में 400 ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, वो एक बार बता देना. रिपीट हाँ करना बिल्कुल प्लीज. बता रही हूँ. देखो CRR की कैलकुलेशन कैसे होगी? जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट टेक आउट द क्वेश्चन. होल्ड ऑन. हाँ, CRR की कैलकुलेशन क्या होगी? मुझे पता है मुझे कितना करना था, दैट इज बायबैक. सो आई हैड टू डू अ बायबैक ऑफ 600, राइट कार्तिक? आई विल कम. यस मैम. ठीक है. नाउ आउट ऑफ द 600 व्हाट इज सेड दैट 200 का आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना? यस मैम. तो बचा क्या? 600 minus 200 is Okay. 400. So you transfer that amount which you're taking from free reserves or other than the proceeds of fresh issue. ठीक है? So I think that's it for today. Any doubts, any question till now, please ask.